समथिंग लाइक y इक्वल टू fx पे x इक्वल टू x नॉट अगर हम पुट कर देते हैं तो दैट पॉइंट लाइक दैट. So what is the definition says? Let P be a point on the graph of a vector value function RT, and let RT not be the radius vector from the origin to P. That means this is a fixed point. RT naught is a fixed vector, not a variable one. P equal to P naught, you have to put in the equation of the vector value function. Okay. Now, if R prime T naught exists and R prime T naught is not equal to 0, then we call R prime T naught a tangent vector to the graph of RT at RT naught. We call the line through P that is parallel to the tangent vector, the tangent line to the graph of RT at RT naught. Okay. So basically, जो tangent line के equation होगा, that will be this. So this is the equation of the tangent line. That means this is the point where this is the point on the graph. This is point on the curve. The point on the curve. Point on the curve. And this V naught is your R prime T naught. So equation of a straight line हमने पहले भी देखा है, that is passing point, and this point determines the direction. This point determines this vector determines the direction of the straight line. This is parallel to R prime T naught and passing through the point on the curve. Okay, इस point से pass करता है, that is R T naught. R naught is your R T naught and V naught is your R prime T naught. Okay, so this is the equation of the tangent line. So now try to solve this problem. Find the parametric equation of the tangent line to the circular helix where t equal to t naught, and use the result to find parametric equation of the tangent line at the point where t equal to pi. ये problem करने की कोशिश करो. This is an example from your book. Okay. पहले हम tangent line की equation डालेंगे t equal to t naught, and tell me what will be the answer if you follow that. So formula, what will be RT here? Okay. चलो करो करो फटाफट बताओ मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी. What will be the equation of the tangent line? Guys, respond. बताओ जी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे. हाँ बोलो. थर्ड टर्म क्या लिखा है आपने? Z इक्वल टू टी. Z इक्वल टू टी. कौन बताएगा. बबीता पांडे, आर यू देयर?
व्हाट विल बी द टेंजेंट लाइन? देखो रिस्पॉन्ड करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। सर माइनस साइन टी प्लस कॉस टी प्लस के एक मिनट, माइनस साइन टी आई प्लस कॉस प्लस प्लस कॉस टी जे हम्म प्लस के हम्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दिस इज द सर इक्वेशन ऑफ रूट द, टू होगा नहीं। सर नीचे रूट 2 होगा। नीचे रूट रूट टू टू होगा होगा। नहीं। रूट 2 होगा सर। कोई कह रहा है रूट टू होगा। ठीक है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे करोगे। पहले तो आर प्राइम की निकाल लेते हैं। दैट विल बी योर वी। ओके, तो क्या होगा? माइनस साइन टी प्लस कॉस टी प्लस के। ठीक है, अब आर नॉट क्या है हमारा? आर ऑफ टी नॉट, दैट विल बी माइनस साइन टी नॉट आई प्लस कॉस टी नॉट जे प्लस के। ठीक है, व्हाट विल बी वी नॉट? वी नॉट विल बी आर प्राइम टी नॉट, दैट विल बी माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, this will be cos t naught sin t naught and t naught. Okay. So r prime t naught will be sin minus sin t naught I plus cos t naught j plus k. ठीक है, तो what is the equation of tangent? We follow this formula, r equal to r naught plus t v naught. Okay, r equal to r naught plus t v naught. So what is r naught? Cos t naught I plus sin t naught j plus t naught k plus t into minus sin t naught I plus cos t naught j plus k। अगर आप इसको आई टर्म जो है क्या होगा? cos t naught प्लस सॉरी माइनस t sin t naught I प्लस j और j टर्म sin t naught प्लस t cos t naught j प्लस t naught plus t। So this will be the equation of the tangent. Okay, parametrically x equal to this, y equal to this and z equal to this. ठीक है, ये आपका जो है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। See, this is the equation of the tangent line. Understood? पैरामेट्रिकली जो आ रहा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z इक्वल टू निकालना है। तो इन पर्टिकुलर द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू पाई। अब हमें क्या करना है? जस्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन पे t की जगह पे हमें पाई पुट कर देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको?
Do you guys get this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों ने क्या करा था ये वाला पहले? ये समझ नहीं आया, ये कहाँ से आया ये वाला? नीचे √2 1 √1 + t², ये आप लोगों ने यूनिट टेंजेंट यूनिट नॉर्मल का कंसेप्ट लगा लिया होगा, है ना? यूनिट टेंजेंट वाला लगा लिया होगा आपने। तो दिस इज नॉट द केस। चलो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका t = पाई हैज पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ई नॉट की जगह पे हम पाई पुट कर दे रहे हैं, ठीक है? दिस विल बी द टेंजेंट लाइन, ठीक है? यहाँ पे t = पाई है, तो आप यहाँ पे t = पाई मत पुट कर देना। ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है टी नॉट। टी नॉट इज द फिक्स पॉइंट, तो टी नॉट की जगह पे हमें पाई पुट करना है, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइक दिस। अच्छा, अब ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। नाउ दिस विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। इसको सोचो। नाउ लेट r1t इज दिस एंड r2t इज दिस। द ग्राफ ऑफ r12 and r2t intersect at the origin. Find the degree measure of the acute angle between the tangent lines to the graph r1t and r2t at the origin. Now, do you have any idea how to proceed for this problem? Origin से पुट पास कर रहा है ये दोनों, मतलब क्या? तो origin से मान लो ये आपका कर्व है, मतलब बेसिकली ये प्लेन होगा, तो दोनों कर्व जो है आपका origin से पास कर रहा है। तो आप कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे origin पे, और फिर उन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा वो आपको बेसिकली निकालना है, ठीक है? इसका मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से कोई कर्व पास कर रहा है और यहाँ से दूसरा कर्व पास कर रहा है, ओरिजिन पे हुआ नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके दो टेंजेंट्स होंगे, उसके बाद उनके जो एक्यूट एंगल है वो निकालना है आपको। तो हाउ टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम? तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वहां से हमें टी टी कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें टेंजेंट निकालने के लिए हमें व्हाट डू यू नीड, आर नॉट चाहिए। एंड व्हाट इज आर नॉट? आर ऑफ टी नॉट। और टी नॉट क्या है हमारा? ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? ये ओरिजिन से कब पास करेगा? एट टी इक्वल टू पैरामीटर कब होगा? पैरामीटर की स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी? सो दैट R1 जो कर्व है दैट विल पास थ्रू ओरिजिन। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स x component should be 0, y component should be 0 and z component also should be 0। तो वहां से हमें t की वैल्यू क्या निकल रहा है? t की वैल्यू 0 निकल रहा है। We put t equal to 0 in tan inverse 0 0 sin 0 0 and 0 square 0, ठीक है? तो वहां से t equal to 0, दैट मीन्स r of 0 is r0। तो यहाँ पे आपका मिल गया एक पॉइंट जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट दिस कर्व r2t? ये ओरिजिन से कब पास करेगा? जब ये इक्वल टू 0 होगा, 1. ये इक्वल एग्जैक्टली ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो t की वैल्यू जब 1 होगा, देन r2t विल पास थ्रू ओरिजिन। तो आपको दूसरा मिल गया, दूसरा r0 मिल गया आपको, दैट इज r of 1, ठीक है? ये आपका r1 होगा, ये आपका r2 होगा, ठीक है? तो इस पॉइंट्स पे अब आपको टेंजेंट लाइन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टेल मी द व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट ईच ऑफ दिस रेस्पेक्टिव पॉइंट्स। सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन बताओ मुझे। सर एक बार रिपीट कर दोगे, समझ नहीं आया। ओके, बिल्कुल रिपीट करेंगे। यहाँ से देखते हैं ना, r1t क्या है हमारा? tan इनवर्स t i कैप i sin t j
प्लस टी स्क्वायर के। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो कर्व है ये आपका ओरिजिन से कब पास करेगा? ओरिजिन से पास करने का मतलब एक्स कंपोनेंट जो है एक्स टी, दिस इज योर एक्स टी शुड बी जीरो, दिस इज योर वाई टी शुड बी जीरो एंड दिस इज योर जेड टी ऑल्सो शुड बी जीरो, तभी ओरिजिन से पास करेगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? ओरिजिन यहाँ यस पे सर। है, यहाँ पे आपका 0 0 0 पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली 0 0 0 वेक्टर होना चाहिए, ये तीन वेक्टर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, जो एक्स कंपोनेंट है दैट शुड बी जीरो, वाई कंपोनेंट शुड बी जीरो एंड जेड कंपोनेंट आल्सो शुड बी जीरो। अंडरस्टूड? यस तो सर। यहाँ से क्या आ रहा है, टेन इनवर्स टी अगर जीरो होता है तो टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। साइन टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ सकता है, टी इक्वल टू जीरो एंड टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो। तो आपका t के कौन से वैल्यू के लिए ये ओरिजिन से पास करेगा? इफ t इक्वल टू जीरो देन r1t will pass through the origin, right? Similarly for r2t लेते हैं, t square minus t I plus 2t minus 2j plus ln t k। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ओरिजिन के लिए क्या होगा, दिस शुड बी जीरो, तो ये जीरो होगा तो क्या होगा, t माइनस वन, तो आइदर t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू वन। यहाँ से t के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं, 2t माइनस टू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स t इक्वल टू वन एंड ln t इक्वल टू जीरो मीन्स log वन जीरो होता है, t इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वन वाला है that will satisfy all the three equations, so we can easily discard this solution because this is not satisfying, it is not satisfying these two equation। so यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, t इक्वल टू वन के लिए r2t will pass through origin। do you get it? पैरामीटर की कौन सी वैल्यू के लिए दिस वेक्टर विल पास थ्रू origin? तो r1 0 ये आपका एक वेक्टर होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, r1t आपका है tan इनवर्स t I प्लस साइन टी जे प्लस टी स्क्वायर के। Now what will be the equation of the tangent at r10? r10 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? सर आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप। देखते हैं एक बार, तो r1 प्राइम निकाल लेंगे हम, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स t? secant वन अपॉन secant inverse वन t अपॉन वन प्लस हाँ टी एक्स स्क्वायर। हाँ, वो tan t का नहीं पूछा मैंने, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, साइन टी का होगा cos t प्लस 2t के। ये आपका क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, v नॉट कैसे होगा, t की जगह पे आप जीरो डाल दोगे, तो दैट विल बी वन आई प्लस जे प्लस जीरो के। तो ये बेसिकली आई प्लस जे है। ठीक है,
और क्या चाहिए हमें? वी नीड r10 वेक्टर ऑल्सो। तो r10 वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी 0i 0j प्लस 0k। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट का इक्वेशन r इक्वल टू दिस 0 प्लस t इंटू I प्लस j, राइट? So this is the equation of tangent for the first curve. ठीक है, so this is the equation of the tangent for the first curve. इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। And what about R2? R2 क्या होगा बताओ खुद से करके। इन R2 के केस में क्या होगा? आपको t इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 0। What will be the equation of tangent? R2t क्या है आपका? t स्क्वायर माइनस t I प्लस t माइनस 2j प्लस ln t k। तो वहां से आपको R2 प्राइम निकालना है, दैट इज 2t माइनस 1। चलो ये करके बताओ मुझे, सेम चीज क्या होगा? I cap plus 2j cap plus k cap. आई कैप प्लस 2j 2j, cap हाँ प्लस k cap. के कैप विदाउट टी नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे कोई टी नहीं आएगा। आर यू श्योर अबाउट इट? नो सर, वो t करने के बाद। नहीं मतलब आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा ना। कहाँ गया? हैव यू यूज्ड दिस फॉर्मूला, ये वाला? सर ये आर सिर्फ वी नॉट की वैल्यू है। हाँ हाँ सर, एग्जैक्ट। फिर वो t लगा देंगे ना बाद। तो वो तो लगाना है ना दोस्त। मैंने टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ, ये टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर R1, ठीक है, एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर R2 क्या होगा? तो यहाँ पे V नॉट क्या है आपका? ये होगा आपका V नॉट, राइट? सो दैट इज I प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये आपका हो गया V नॉट। और R नॉट क्या है आपका यहाँ पे? R नॉट है R2 1, ठीक है। तो दैट इज 0i प्लस माइनस 2j प्लस 0k। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? R2 इक्वल टू 0i प्लस, सॉरी, माइनस, प्लस ही कर दो इसको, माइनस प्लस 0k प्लस t इंटू आई प्लस 2j प्लस k। और R1 का है आपका t इंटू आई प्लस j। तो ये दो हो गए हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब हमें क्या सर करना है? आर नॉट पूरा जीरो बन रहा है शायद। हाँ तो 0i जीरो, प्लस 0j प्लस 0k। नहीं जीरो बनेगा क्या दोस्त? सर यहाँ 2t यस पे, माइनस सर। 2 ओ है हाँ तो हाँ t की हाँ, वैल्यू 1 राइट डाल देंगे ना। राइट राइट, यस सर, जीरो ही बनना जीरो बन रहा है। t की वैल्यू हमें 1 डालना है। ठीक है, चलो सो नहीं रहे हो सब लोग। तो ये आप हमारा हो गया जीरो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के।
तो टेंजेंट की इक्वेशन बन गया एट ओरिजिन, ठीक है। एट ओरिजिन पे ये है दोनों टेंजेंट की इक्वेशन। अब बताओ, यहाँ पे जो है एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइंस टू द ग्राफ ऑफ R1T एंड R2T एट द ओरिजिन। हाउ टू गो अबाउट इट? अच्छा, एक चीज ध्यान है आप लोगों को, V1 डॉट V2 अगर हम बीच में एंगल करते हैं, निकालना हो तो ए डॉट बी से निकाल देंगे ना सर सर। डॉट प्रोडक्ट वाले हाँ फॉर्मूले पे एग्जैक्ट, एंगल निकल सकता है। ये होता है ना हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। V अगर आपका V1 V2 अगर दो वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट इज मॉड V1 इंटू मॉड V2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाई मॉड V1 इंटू मॉड V2, ठीक है। तो इन दिस केस कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा? दीज आर द टू वेक्टर्स, दीज आर बेसिकली डायरेक्शन, these are the direction, these vectors will determine the direction of the tangent line। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉर्म हो जाएगा। if this is your, let's say your V1 your V2, तो आप पहले नॉर्म V1 निकाल लो। नॉर्म V1 क्या है? ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज नॉर्म V2 क्या है हमारा? ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज √6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाय नॉर्म V1 टू नॉर्म V2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कर लो, इसका क्या होगा, V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या निकलेगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय √2 √6, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी द एंगल, थीटा एंगल क्या होगा बताओ? √3/2 आ रहा है, √3/2. √3/2 आ रहा है, सो Yes, थीटा sir. इक्वल Yes, सर sir. 30 टू 5/6, 5/6. ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। टेंजेंट का हमने लास्ट क्लास में तो यूनिट टेंजेंट देख लिया था, ठीक है। तो नॉर्मल टेंजेंट के इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये समझ में आया आप लोगों को दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम स्टिल हियर, कोई डाउट? मैं फिर से समझा सकता हूँ, इफ समवन सर वांट। एक डाउट है हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस ये नहीं समझ आया नॉर्म और मॉड में क्या फर्क होगा। नॉर्म और मॉड में कोई फर्क नहीं है अप टू हियर। बेसिकली नॉर्म इज द जनरलाइज्ड टर्म। मॉड जो होता है आपका, मॉड वैल्यू जो होता है, हम क्या करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने पोलर वगैरह करा था, तो दैट इज √x² प्लस y², ठीक है, मॉड वैल्यू। अब नॉर्म जो है, जब भी मैं नॉर्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम √a² प्लस b² कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। दिस कुड बी एनी फंक्शन रिलेटेड टू XYZ। नॉर्म जो होता है दैट कुड बी एनी फंक्शन रिलेटेड टू XYZ। जैसे हम लोग, मोर जनरलाइज टर्म आप लोगों में उतना ज्यादा है नहीं, बट हम लोग डिस्टेंस को, बेसिकली ये क्या देता है आपका, जब भी आप लोग मॉड ये करते हो, क्या कहते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हो, तो उसमें क्या होता है आपका, नॉर्मली √, ये होता है, या फिर √x² प्लस y² प्लस z² होता है, ठीक है। बट नॉर्म में हम कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। नॉर्म में वी कैन डिफाइन एनी फंक्शन। हम ये भी लगा सकते हैं, मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z, ठीक है। या फिर हम ये लगा सकते हैं, मॉड ऑफ
x प्लस वाई प्लस जेड -1। ठीक है, तो नॉर्म जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है जिसके ना कुछ प्रॉपर्टीज है मैथमेटिक्स में। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो किसी भी फंक्शन को हम नॉर्म बोल सकते हैं, बट मॉड नहीं बोल सकते। तो नॉर्म इज लाइक मोर generalized concept of generalized concept of distance। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप नॉर्म छोड़ दो, मॉड ही बोलो सबको। ठीक है, यू कैन स्ट्रेट अवे टेल देम एज मॉड। नॉर्म जो है ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट है मॉड का, और कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्म फंक्शन का एक अलग से डेफिनेशन होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। दैट कम्स अंडर मैट्रिक्स स्पेस। मैथमेटिक्स के एक स्ट्रीम है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स जो होता है ये हमारा डिस्टेंस रिलेटेड चीजों को लेकर डील करता है। मैट्रिक, नॉट मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में हम नॉर्म फंक्शन को अलग से डिफाइन करते हैं। उस डेफिनेशन में हम जाएंगे नहीं। फ्रॉम देयर दे आर लाइक, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशन हो जाता है ना, तो मॉड बेसिकली 2 डायमेंशन केस के लिए ही हम सीमित रखते हैं। बट whenever we come to 3 dimension, that's why they have used mod, norm। ठीक है, नॉर्म कुछ नहीं है, नॉर्म इज मोर जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मॉड्यूल। चलो ठीक है, ठीक है, देखो दैट इज, तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था आई गेस। अच्छा, एक चीज आप लोग शो कर सकते हो, आर टी डॉट आर प्राइम टी, ये 0 होगा। कैन यू शो दिस? सर ये हो गया था सर पिछली क्लास में। लास्ट क्लास में कराया था आपने। ये लास्ट क्लास में कैसे होगा एक बार बता दो। लास्ट क्लास में कराया तो भूल गए इतनी जल्दी हैं? आर टी इंटू आर प्राइम टी कैसे 0 होगा? Dot product we should prove via व्हाट वी शुड प्रूव भाया? सर टेंजेंट 90 डिग्री पे होता ना तो cos 90 पे 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तो पता है मुझे, वो तो पता है, बट द थिंग इज कि हाउ टू सर प्रूव। डेरिवेटिव करेंगे। हाँ सर हाँ हाँ, डेरिवेटिव करेंगे सर RTF इनका। इसका डेरिवेटिव करेंगे। सर आर टी का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, आर टी इंटू आर टी का डेरिवेटिव। हाँ, आर टी डॉट आर टी का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सोनी बेख्याली गाना चला रहा है ये। ऋषि तो अभी आया क्या? हैं मिस्टर ऋषि सोनी? नहीं सर, मैं बहुत पहले से हूँ। तो गाना कहाँ से बज रहा है? क्या पता सर, ये पीछे से बज गया अभी। अच्छा, पीछे से बज गया, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आर टी डॉट आर टी का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, दिस इज अ सिंपल प्रूफ। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कब किया था, बट दिस इज द प्रूफ। आर टी डॉट आर टी का हमने डेरिवेटिव निकाला, तो आर टी डॉट आर टी जो होता है दिस इज नॉर्म ऑफ आर टी स्क्वायर। This has become 2RT drdt, that is r prime t. Now this is constant because this is a scalar value. So this part will become 0. So RT into r prime t will be equal to 0. Now the theorem is, if RT is differentiable vector valued function in 2-dimensional or 3-dimensional space and our norm of RT is constant for all t, then RT
dot r prime t is 0. This is basically the proof. के बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन में. ठीक है, यू डोंट नीड टू गो अबाउट दिस डेफिनेशन. दिस इज सेम अगेन रिमान सम वाला जो हमने किया था कुछ टाइम पहले. सिंपली आपको याद रखना है दैट इंटीग्रेशन मींस कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन लाइक द डिफरेंशिएशन वी हैव डन. ठीक है, 2 dimensional and 3 dimensional space का formula they are basically analogous. Now see this integration. They have just component wise integrate all the function. फिर से इंटीग्रेशंस के जो रूल्स है नॉर्मल आपका स्केलर वैल्यूड फंक्शन के लिए जो जो रूल वैलिड है वेक्टर वैल्यूड के लिए भी सेम रूल वैलिड है. Now they have given a little bit concept of antiderivative. Okay. So antiderivative for a vector valued. अच्छा antiderivative का concept आप लोगों के real valued function में है? Do you guys have this concept of antiderivative in real valued function? सर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एंटीडेरिवेटिव कहते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप लोगों के लिए उतना ही काफी है. थोड़ा और डिटेलिंग में हम जा सकते हैं बट जरूरत नहीं है आप लोगों को. That's for honor. So antiderivative is, so capital RT is called the antiderivative of small rt. Okay, that is defined by basically capital RT जो होगा आपका that will be integration RT dt minus that constant. Okay, या प्लस भी कर सकते हैं. तो सेम एग्जांपल तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट विल बी वेक्टर आर्बिट्ररी वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, स्केलर में हमारा स्केलर कांस्टेंट होता है, वेक्टर में दैट इज वेक्टर कांस्टेंट. ओके, for definite integral same rule, these are really trivial. ये प्रॉब्लम देख लो. अच्छा ये प्रॉब्लम खुद से करो, देखने की जरूरत. फाइंड rt given that r prime t equal to 3 2t and r1 equal to 2 5. what will be the rt vector? ये वेक्टर क्या होगा? what will be this vector? कैसे करेंगे इसको? अरे नहीं बता पा रहे हो? सर सॉल्व तो करने दो. कितना टाइम लगता है? सर 3t, 2t स्क्वायर. 2t स्क्वायर थोड़ी आएगा.
3t plus 2t Sir, square. sir 3t plus t square, 3t comma t square. एग्जैक्टली, ये आपका RT हो गया। और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट की वैल्यू तो आपने निकाला नहीं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा ना, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? Sir minus comma 4, माइनस minus 1 comma 4. -1,4। तो आपकी RT क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी योर RT? RT विल बी 3t minus 1 I plus t square plus 4। समझ में आ रहा है? Yes sir. यस मैं सर। कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो RT क्या होगा आपका? इसका इंटीग्रेशन ठीक है, so this will become 3t comma t square T square. plus C1 comma C2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? R1 which is equal to 2,5। तो 1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, so this will become 3 plus C1 comma 5 की वैल्यू अगर पुट करेंगे, that will become 25 plus C2। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, so this will become C1 plus 3 equal to 2, C1 equal to -1, and what about C2? C2 will be equal to -20। ठीक है, तो RT will be 3t minus 1 t square minus 20। ठीक है, Yes अंडरस्टूड? sir. Yes sir. प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है? चलो फिर। अच्छा, मैंने कर दिया क्या कैलकुलेशन मिस्टेक? R1 R1 ओके ओके सर आपने 5 ले लिया ना बस हाँ 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 इसमें हाँ हाँ, राइट 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 राइट, मैंने 5 ले लिया, मैंने इसको 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। +4। ठीक है, चलो ये एक्सरसाइजेस हैं, प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। 4-5 प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड हियर इज योर
तो एक्सरसाइज सॉल्व करना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्योंकि अगर हमारा करने लायक होगा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? अच्छा, आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है? यस सर। है ना, तो उसका भी यूज यहाँ पे शायद हो सकता है, देख लेना आप लोग। ओके, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू को क्या कहते हैं हम? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू। पूछ रहे हो, बता रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखना, कहीं पर डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस। तो यहाँ से थोड़ा बहुत बताओ। अच्छा, ट्रू फॉल्स बताना, जरा कंसेप्ट में देखते हैं। डिटरमाइन whether the statement is true or false and explain your answer. Now, if a vector valued function rt is continuous at t equal to a, then the limit will exist or not. What can you say? ये लिमिट एग्जिस्ट होगा? यस सर। पक्का? t इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है और कुछ नहीं है। नहीं सर, नहीं, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो व्हाट इफ h ये और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर अलग होता है तो हम कह नहीं सकते ना इसके केस के लिए। तो ये बेसिकली हमारा आर प्राइम ए है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो बट यहाँ पे सिर्फ ये लिमिट एग्जिस्ट बोल रहा है, बट इसका मतलब क्या है? ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। फ्रॉम देयर व्हाट कैन यू कंक्लूड? नो, हाँ दिस इज फॉल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल बोल रहा है, ये दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन? इफ rt is a vector valued function in two dimensional space and norm t is constant, then rt and r prime t are parallel vectors for all t. सर परपेंडिकुलर होंगे शायद। परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्म ऑफ rt is constant, then they are parallel vectors, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। पक्का ये फॉल्स होगा? अच्छा, नॉर्म टी का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय नॉर्म टी? सर मॉड्यूलस। एक एक मिनट, जस्ट क्या रहे? हाँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट।